ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ شہر میں غنڈہ گردی عروج پر، چھتہ بازار میں فائنانسر کے ہاتھوں ایک نوجوان کا دن دہاڑے قتل۔ غیر سماجی عناصر کی سرگرمیوں پر رکن اسمبلی چارمینار کا اظہار تشویش، سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ اسکول میں طالب علم کی وحشیانہ پٹائی، والدہ کی شکایت پر اسکول کا ٹیچر گرفتار۔ سدی پیٹ کو ضلع بنایا جائے گا، کریم نگر کے دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ کا وعدہ۔ اور 100 معذورین کو موٹر ٹرائی سائیکل کی فراہمی کے لیے 30% حصہ ایم ایل اے فنڈ سے فراہم کرنے، رکن اسمبلی ملک پیٹ کا اعلان۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ چھتہ بازار میں دن دہاڑے ایک فائنانسر نے ایک نوجوان کا قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق معین پرنٹنگ پریس کے مالک 25 سالہ جاوید نے حسن الجابری سے 50,000 روپے رقم سود پر حاصل کی تھی۔ متوفی کے بھائی کا کہنا ہے کہ حسن الجابری کو 40,000 روپے ادا کر دیے گئے تھے، لیکن وہ 30,000 روپے مزید ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے جاوید کو ہراساں کر رہا تھا۔ منگل کو پولیس نے بھی جاوید اور حسن الجعفری کے درمیان صلح صفائی کروا دی تھی، لیکن چہارشنبے کی صبح حسن اور اس کے ساتھیوں نے جاوید پر مہلک ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ شدید زخمی حالت میں جاوید کو عثمانیہ دواخانہ لے جایا گیا، جہاں وہ علاج کے دوران جان بر نہ ہو سکا۔ مقتول کے گلے اور جسم کے دیگر حصوں پر متعدد ضربات پائے گئے۔ پولیس نے اس سنسنی خیز کا مقدمہ درج کیا اور تحقیقات شروع کر دی۔ ساری صدا دے میرے بچے کو کھانا نہیں لا کے نکلا صبح گھر سے۔ یہ کیا مصیبت ہے یہ ہمارے گھر میں، آج کیا دن دکھا دیا آج اللہ میں۔ ہم ایسا سوچے بھی لیتے ہیں، آج اپنا ہمارے گھر سے کتنے رو رہے ہیں، آج بچے کو یاد کر کے کہاں جانا ہوں، کہاں ڈھونڈنا۔ اتنے میرے ابا کا انتقال وجہ سے کہیں نہیں گئے میرے بھائی، آج اتنا بڑا دن دکھا دیا ہمارے کو اللہ۔ رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قاضی نے حسن نگر میں غیر سماجی عناصر کی سرگرمیوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ منگل کو غیر سماجی عناصر کے حملے میں زخمی نوجوان موئس کی عیادت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد پاشا قاضی نے کہا کہ غیر سماجی عناصر کی بڑھتی سرگرمیوں سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، پولیس کو اس سلسلے میں سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ انہوں نے موئس کے علاج سے متعلق عثمانیہ دواخانے کے MRO سے بھی بات چیت کی۔ حسن نگر میں 7:30 بجے موئز نام ایک بچے کو اسٹیپنگ ہوئی، وہاں کے کچھ روڈی شوٹرز بتایا کہ بچے کو ماری، آنکھوں میں مرچی ڈال کے پکارے، پلٹ سے مرچی ڈال کے مارے۔ سیبرآباد ایریا میں غنڈہ گردی، لینڈ گرابرز کی بدماشیاں دن بہ دن بڑھتے جا رہی۔ راجندر نگر PS میں پورا روڈی شوٹرز کا اڈا بنا ہوا ہے، مقبروں کا اڈا ہے، اور وہاں پہ صحیح طور پہ ایسے کیسوں پہ ایکشن نہیں لینے کی وجہ سے ایک ہفتے میں دوسرا کیس ہے یہاں پہ اسٹیپنگ کا۔ کمشنر سیبرآباد سے ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ وہ فوری وہاں پر روڈیوں کو پکڑے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ جمعرات کو بنجارہ ہلز میں بنجارہ بھون، آدیواسی بھون اور بابو جگجیون رام بھون کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد تقریب مقرر ہے، جس کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ TRS رکن پارلیمنٹ سیتا رام نائک اور راملو نائک نے بتایا کہ متحدہ ریاست میں بنجارہ ہلز سے بنجارہ طبقے کو ختم کر دیا گیا تھا، اب وہیں پر بنجارہ بھون کی تعمیر کا فیصلہ قابل ستائش ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے سدی پیٹ کو ضلع بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ سدی پیٹ کے دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریلوے لائن اور زرعی شعبے کو پانی فراہم کرتے ہوئے وہ سدی پیٹ کا احسان چکائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے لائن کے لیے ریاستی حکومت 50% رقم ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کریم نگر کا بھی دورہ کرتے ہوئے مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔
आंध्र प्रदेश हुकूमत के वजीर पी रघुनाथ रेड्डी सेक्रेटेरिएट में अपने चेंबर में पैर फिसल कर गिरने से जख्मी हो गए। सिक्योरिटी हुकाम ने फौरी उन्हें सेक्रेटेरिएट के अहाते में वाक़ दवाखाना मुंतकिल किया, लेकिन अमले की अदम दस्तयाबी की वजह से उन्हें निम्स मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि रघुनाथ रेड्डी शुगर के मरीज़ हैं और पहले से उनके पैर में ज़ख्म था और इसी ज़ख्म पर चोट लगी। उनके चेंबर में खून के धब्बे देखे गए। गवर्नर ESL नरसिम्हन दिल्ली पहुंच गए हैं। चारशंबे की रात गवर्नर ने मरकजी वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। जुमे को गवर्नर राष्ट्रपति भवन में एक तकरीब में भी शिरकत करेंगे और उसी दिन हैदराबाद वापस होंगे। बताया गया है कि गवर्नर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाहमी मसाइल पर मरकजी वज़ीर दाखिला से तबादले ख्याल करेंगे। YSR कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि तेलुगुदेशम जमहूरियत का मजाक उड़ा रही है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी लीडर पार्थसारथी ने कहा कि हक़ मालूमात एक्ट के तहत आम आदमी को हुकूमत से सवाल करने का हक़ है, लेकिन जब वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की आमदनी की तफसीलात पूछी गईं तो तेलुगुदेशम कायदीन बौखलाहट का शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम हुकूमत गरीब आवाम के लिए नहीं बल्कि दौलतमंद तबके के लिए काम कर रही है। तेलंगाना के तेलुगुदेशम कायदीन के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दाखिल की गई है। नामपल्ली अदालत के वकील ने तेलुगुदेशम कायदीन इदियाकर राव और आर चंद्रशेखर रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। नामपल्ली अदालत ने बंजारा हिल्स पुलिस को 12 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। नलगुंडा चौराहे पर वाक़े माज़ूरीन कैंप्स में आलमी योम माज़ूरीन और बैनुल-अक़वामी योम हुकूक़ इंसानी के मौके पर एक तक़रीब मुनक़िद हुई, जिसमें माज़ूरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला और कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसल के जनार्दन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए अहमद बलाला ने कहा कि GHMC की जानिब से माज़ूरीन की अराज़ी हासिल करते हुए फ्लाई ओवर की तामीर की गई, लेकिन GHMC ने वादे के मुताबिक नलगुंडा चौराहे पर वाक़ माज़ूरीन के कैंप्स में इमारत की तामीर नहीं करवाई। उन्होंने तकरीब में मौजूद बलदी अहदेदारों को हिदायत दी कि वह माज़ूरीन के लिए ऑडिटोरियम की तामीर से मुताल्लिक़ एक तखमीना तैयार करें। अहमद बलाला ने यह भी ऐलान किया कि 100 माज़ूरीन को मोटराइज ट्राईसाइकिल की फराहमी के लिए जो भी रकम होगी उसका 30% हिस्सा वो अपने MLA फंड से फराहम करेंगे। तकरीब से MLC जनार्दन रेड्डी, B शैलजा के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों ने भी खिताब किया। జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ తెలంగాణ వికలాంగుల కోఆపరేటివ్ కార్పొరేషన్ ఈరోజు వరల్డ్ డిజేబుల్ డే అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ డే రెండు కలిపి ఒక ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. దాంట్లో భాగంగా మేము ఇక్కడికి వచ్చాము. ప్రభుత్వము వికలాంగులకి చాలా చేస్తోంది. అంటే ఈ సంవత్సరము అంటే ఇంతకుముందున్న ఏదైతే బడ్జెట్ ఉందో ఈ సంవత్సరము ఈ తెలంగాణ 10 జిల్లాలకు మాత్రం అంతే బడ్జెట్ని శాంక్షన్ చేసి వివిధ పథకాలని చేసుకోవడానికి అభివృద్ధిలో భాగంగా వాళ్ళందరికీ కూడా रुकन असम्बली याकूतपुरा मुमताज़ अहमद खां के हाथों 755 मुस्तहक़ अफराद में वज़ाइफ की तक़सीम अमल में आई। मीडिया से बात करते हुए मुमताज़ अहमद खां ने बताया कि वार्ड 18 में 755 मुअम्मरीन, बेवाओं और माज़ूरीन में वज़ाइफ तक़सीम किए गए। उन्होंने कहा कि दीगर दरख्वास्तों की जांच के बाद अहल अफराद को वज़ाइफ जारी किए जाएंगे। उन्होंने अवाम से हुकूमत की स्कीमों से इस्तेफ़ादा करने की अपील की है। इस मौके पर मंडल ओहदेदार भी मौजूद थे। हल्के याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 18-7 का जो वार्ड है, यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन, वीडियो पेंशन तकसीम किए जा रहे हैं। हमारे कंसर्न MLA चारमीनार MLA भी के स्टाफ की तरफ से और MRO साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। 155 लोगों को वज़ाइफ तकसीम किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मजीद और भी जो एप्लीकेशन है उसकी इंक्वायरी बाकी है। वो इंक्वायरी होने के बाद जो मजीद एप्लीकेशन डाले गए उनको भी तकसीम किए जाएंगे। गवर्नमेंट के और भी जो दीगर स्कीमात हैं। कास्मो एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से पुराने शहर के उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा में स्कूल बैग्स और कापियों की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने सोसाइटी के जिम्मेदारों के हमरा काजीपुरा और फलकनुमा के स्कूल्स का दौरा किया और तलबा में बैग्स और कापियाँ तकसीम की।
महाराष्ट्र के इलाकों श्री रामपुर और सहारनपुर से मुसलमानों के वफूद ने दारुस्सलाम में मजलिस के मोतमद उमूमी से मुलाकात की। वफद ने महाराष्ट्र बिलखुसूस श्री रामपुर और सहारनपुर में मजलिस को ताकतवर बनाने के लिए सरगर्म हो जाने का अज़्म ज़ाहिर किया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के के इलाके छावनी नादे अली बेग, आसमानगढ़, सपोटा बाग में वज़ाइफ की तक़सीम की। उन्होंने तकरीबन 600 ज़ईफ़ अफराद और बेवागान में ये वज़ाइफ तक़सीम की। अहमद बलाला ने कहा कि हुकूमत ने वज़ाइफ की रकम में इजाफ़ा तो किया है, लेकिन तमाम मुस्तहिक़ अफराद को वज़ाइफ फ़राहम नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम मुस्तहिक़ अफराद में वज़ाइफ की तक़सीम अमल में लाई जानी चाहिए। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने महकूमा बलदिया खैरताबाद के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जाकिर हुसैन के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। रुकन असम्बली ने अपने हल्के के ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों का जायज़ा लिया और ज़रूरी हिदायतें दी। कांग्रेस लीडर शंकर राव ने दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने के मरकज़ के फ़ैसले को नामुनासिब करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तबक़े की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाते हैं, लेकिन मरकज़ का फ़ैसला दोनों तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी है। शंकर राव ने कहा कि वो इस सिलसिले में सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म को मकतूब रवाना करेंगे। कांग्रेस किसान सेल के सदर कोदंडा रेड्डी ने हुकूमत से तेलंगाना में ज़रई इमरजेंसी के ऐलान का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने किसानों के कर्ज मामले पर अब तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया है। कोदंडा रेड्डी ने कहा कि अब तक 500 किसान खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से किसी भी तरह की इमदाद का कोई ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कौमी इंसानी हुकूक तंजीम की तरफ से नोटिस का जारी होना हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। कौमी बीसी संक्षेमा संगम ने इंटरमीडिएट के लिए 8,000 रुपये फ़ीस मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। तेलुगु देशम रुकन असम्बली आर कृष्णैया की क़ियादत में तंजीम के कारकुनों ने कलेक्टर के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। आर कृष्णैया ने कहा कि अगर तलबा के फ़ीस बकाया जात अदा नहीं किए गए तो वज़रा के दौरों में खलल पैदा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले साल के 1200 करोड़ रुपए के बकाया जात अदा नहीं किए गए, जबकि जारिया तालीमी साल के 6 माह मुकम्मल होने के बावजूद कई दरखास्तों का अमल शुरू नहीं किया गया। मिनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर O.J. मधु ने बताया है कि उन्होंने अपने ओहदे का जायज़ा हासिल करने के बाद 4,691 तलबा के स्कॉलरशिप्स जारी किए हैं। उन्होंने 4TV के नुमाइंदे के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जुमला 6,403 तलबा के स्कॉलरशिप्स आए थे, जिनमें से माबाकी 1,712 तलबा के वज़ाइफ मुतल्लिक़ा कॉलेजेस से ज़रूरी मालूमात फ़राहम होने के बाद जारी कर दिए जाएंगे। जब 4TV के नुमाइंदे ने शादी मुबारक स्कीम के ताल्लुक़ से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि अब तक 37 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 3 दरखास्तों को मंजूर करके दरख्वास्त गुजारों के अकाउंट में रकम जमा करवा दी गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 5 महीनों से मज़कूरा ओहदा खाली था, जिसके लिए एडिशनल जॉइंट कलेक्टर मूर्ति को इंचार्ज मुकर्रर किया गया था। हज़रत सैयद शाह राजू मोहम्मद मोहम्मदुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की उस तक़ारीब इख्तिताम को पहुँची। 4 शुंबे को सुबह ख़त्म कुरान मजीद और महफिल कुल और मजलिस समा के बाद उर्स शरीफ ख़त्म हो गया। एक रोज़ कबल मजलिस मुज़ाकिरे का इनेकाद भी अमल में आया। शहर के मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ इज़ाम और उलमा किराम के अलावा ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने उस तक़ारीब में शिरकत की। लंगर हाउस पुलिस ने तालिब इल्म की वहशियाना पिटाई करने के इल्ज़ाम में एक टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मदीना कुरानिक स्कूल वाक़ मोहम्मद लाइन के टीचर मोहम्मद इलियास ने 7 साला मोहम्मद उस्मान की ज़बरदस्त पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में मासूम के जिस्म पर कई निशान पड़ गए। लड़के की वालिदा ने इस सिलसिले में लंगर हाउस पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए टीचर को गिरफ्तार कर लिया। शालीमंडा पुलिस ने 9 दिसंबर को नवाब साहब कुंटा इलाके में पेश आई एक शख्स के कत्ल की वारदात के सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह हिम्मतपुरे में वाक़े जायदाद का तनाज़ा है। पुलिस ने बताया कि साबिक़ कांस्टेबल मिर्ज़ा महबूब बेग के कत्ल के सिलसिले में मुमताज़ खान, मोहम्मद नसीर अहमद, मोहम्मद मोइज़ और शेर खान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के बमौजिब हिम्मतपुरे में वाक़ मकान मक़तूल के निस्बती रिश्तेदार का था,
جن کے انتقال کے بعد 100 گز زمین محبوب بیگ کی بیوی نذیر بیگم اور 200 گز زمین محبوب بیگ کے برادر نسبتی محمد جیلانی کے حصے میں آئی۔ ملزمین نے 1999 میں یہ 200 گز زمین جیلانی کے پاس سے خرید لی تھی، لیکن مقتول محبوب بیگ بھی اس زمین پر دعویٰ پیش کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ملزمین اور محبوب بیگ میں یہ رقابت پیدا ہوئی تھی۔ ملزمین نے بالآخر 9 دسمبر کو محبوب بیگ کا قتل کر دیا۔ گولکنڈہ پولیس نے نشے کی حالت میں خواتین کی مبینہ پٹائی کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تولی چوکی چوراہے کے پاس ایک خاتون آمنہ اپنے گھر کے سامنے کپڑے دھو رہی تھی کہ ایک شخص کرشنا نے اس کے قریب آ کر قے کر دی۔ خاتون کے برہم ہونے پر کرشنا اور اس کے ساتھی نے تیش میں آ کر اس کی جم کر پٹائی کر دی۔ اس دوران جب آمنہ کی والدہ نے مداخلت کی تو ان دونوں شرابیوں نے ان کی بھی پٹائی کر دی۔ اس واقعے میں متاثرہ خاتون کی طلائی زنجیر بھی غائب ہو گئی۔ لنگر ہاؤس پولیس نے ایک کیس درج کر کے کرشنا اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ شہر میں غنڈہ گردی عروج پر، چھتا بازار میں فائنانسر کے ہاتھوں ایک نوجوان کا دن دہاڑے قتل۔ غیر سماجی عناصر کی سرگرمیوں پر رکن اسمبلی چار مینار کا اظہار تشویش، سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ اسکول میں طالب علم کی وحشیانہ پٹائی، والدہ کی شکایت پر اسکول کا ٹیچر گرفتار۔ سدی پیٹ کو ضلع بنایا جائے گا، کریم نگر کے دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ کا وعدہ۔ اور 100 معذورین کو موٹر ٹرائی سائیکل کی فراہمی کے لیے 30% حصہ MLA فنڈ سے فراہم کرنے، رکن اسمبلی ملک پیٹ کا اعلان۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ غوث علی سعید کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔